کہ حضرت یہ بتائیں کہ کیا غزوہ احد کے دن حضرت عثمان جو ہے وہ میدان جنگ چھوڑ کر بھاگے تھے؟ عبداللہ بن عمر نے فرمایا ہاں ایسا ہی تھا۔ خبردار اپنی آوازوں کو میری نبی کی آوازوں سے بلند نہ کرنا۔ تم جیسا ہوتا تو اجازت دے دیتے، اگر ان میں اور رسول میں فرق ہی کوئی نہیں تھا پھر اونچا بولنا کیا اور آہستہ بولنا کیا؟ پھر ارشاد فرمایا لا تقدموا بین ید اللہ و رسول، خبردار کبھی بھی میرے رسول کے آگے قدم بھی نہ بڑھانا۔ جرم ہے اونچی آواز میں بولنا یا رسول کے آگے قدم بڑھانا، جرم دو ہیں سزا ایک ہے۔ احبت میں تمہارے اعمال حبت کر لوں گا۔ توجہ فرمانی ہے، جس بندے کو میری بات سمجھ آئے وہی میرے ساتھ بولے گا، باقی ہر بندے کو مجلس حسین میں بولنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ توفیق یہ خدا دیتا ہے تو کوئی بولتا ہے۔ حق کی حمایت اس زمانے میں مومنین ہی سے توقع رکھی جا سکتی ہے۔ ایک تو میرے نبی کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا نہ کرنا، دوسرا اس کے آگے قدم نہیں بڑھانا۔ اگر آواز اونچی ہو گئی یا قدم آگے بڑھ گیا تو سزا یہ ہوگی کہ جتنے بھی عمل تم نے کیے ہوں گے میں ان سب کو حبت کر لوں گا۔ ضبط نہیں، حبت۔ ضبط اور ہوتا ہے، حبت اور ہوتا ہے۔ سونا پکڑا جائے تو ضبط ہوتا ہے، چرس پکڑی جائے تو حبت ہوتی ہے، کیونکہ سونے کو جلایا نہیں جاتا، چرس کو جلا دیا جاتا ہے۔ میں نے ابھی آیت پڑھی ہے، گفتگو شروع نہیں کی، کوشش کریں یا علی آخری میرا جوان۔ سامعین گرامی قدر، اعمال حبت ہو جائیں گے اس بندے کے جو رسول کے سامنے اونچی آواز سے بولے گا۔ شیعہ کافر اس لیے ہیں کہ ہم ان بدتمیزوں کے نام بتا دیتے ہیں۔ جسے بات سمجھ آئے وہ میرے ساتھ بولے گا۔ آل محمد آپ کو سلامت و آباد ساتھ۔ ہمیں لوگوں نے کافر اس لیے کہا، اس لیے لوگ ہمیں کافر کہتے ہیں کہ ہم پوچھتے ہیں کہ ان بدتمیزوں کے نام بتاؤ۔ تم نے ہر جرم شیعوں کے کھاتے میں لکھا، وہ شیعوں نے کیا تھا، وہ شیعوں نے کیا تھا، وہ شیعوں نے کیا تھا۔ یہ کون تھے جن کے خلاف ایف آئی آر قرآن میں کٹی ہوئی ہے؟ اور قرآن والی ایف آئی آر کچی بینسل سے نہیں ہوتی۔ آئین نہیں جس میں ترمیم ہو جائے، ضمنی نہیں جس میں واقعات بدل دیے جائیں۔ قرآن کہہ رہا ہے ان بدتمیزوں کے نام بتاؤ جو رسول کے سامنے اونچی آواز میں بولتے تھے۔ جی شیعہ صحابہ کو نہیں مانتے، اللہ لعنت کرے اس بے غیرت پر جو رسول کے صحابہ کو نہیں مانتا۔ چادر زہرا کی، ولایت علی کی، شہادت حسین کی قسم کھا کے کہتا ہوں اسے شیعہ کہلوانے کا حق ہی نہیں جو عزت صحابہ کا منکر ہو۔ جی پھر آپ کے ذاکر کیوں کہتے ہیں جی صحابہ کرام فلاں جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر بھاگ گئے تھے؟ میں نے کہا اگر کسی نے پڑھا ہے تو اس نے پڑھا غلط ہے، اور اگر تو نے سنا ہے تو تو نے سنا غلط ہے۔ قرآن میرے سر پہ رکھ، مجھے رحمان کی عزت، رسول کی رسالت اور علی کی ولایت کی قسم، پیغمبر کو میدان سے صحابی چھوڑ کر نہیں بھاگے تھے، منافق چھوڑ کر بھاگ۔ سلامت و آباد صاحب، آل محمد تمہیں سلامت رکھے۔ جس کا عقیدہ ہوگا وہ میرے ساتھ بول۔ آپ کو کس کمینے نے کہا کہ صحابی چھوڑ کر بھاگ گئے تھے؟ ہو صحابی اور چھوڑ کر بھاگ جائے، وہ منافق تھے، کیونکہ بندے بھاگے تو تھے۔ اور یہ ہے جذبہ اتحاد بین المسلمین۔ مجھے پتا ہے لیکن میں نام نہیں بتاؤں گا کہ کون بھاگے تھے۔ آپ تو عاشق ہیں، اور عاشق تو دودھ کی نہریں کھود دیتے ہیں۔
2 मिनट अपनी किताबें उठाओ, पढ़ाओ, कौन भाग गया, किसे कुरान कह रहा है कि या सूरह आल इमरान आयत नंबर 31 इरशाद हो रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अत्तिउल्लाह व अत्तिउर रसूल फइन तवल्लौ फइन्नल्लाह ला युहिब्बुल काफिरीन। मेरे हबीब से कह दे अल्लाह की अताअत करें और रसूल की अताअत करें, और फिर इनमें से जो कोई भी तुझे छोड़कर भागा, अल्लाह फिर काफिरों को दोस्त नहीं रखता। काफिर वो नहीं जिसे मुल्ला दीवार पे लिख दे, काफिर वो है जिसे अल्लाह कुरान में काफिर लिख दे। बंदे तलाश कर कौन दौड़े थे। बिस्मिल्लाह किबला जी, हैदरी पर मैं रहा हूं, घबरा बंदे रहे। आप जितना मर्जी परेशान हो जाए, भागे तो थे बंदे। उनके वकीलों ने भी लिखा, अल्ताफ हुसैन हाली ने पर्दा डालने की हद कर दी। उन्होंने कहा खुद नहीं भागे थे, घोड़ा लेके भागा था जी। जैसे घोड़ा नहीं संभाला गया, उससे दीन कैसे संभाला जाए। हैदरी, और इस मिंबर पर गलत हवाला देना कुफ्र है। शिबली नौमानी ने लिखा कि फुला, नाम नहीं लूंगा, नाम कन्फर्म है, बल्दियत मशकूक है, अधूरे काम इस मिंबर से होते नहीं। उनका फुला रजी अल्लाह ताला अन्हो सबसे आखिर में तशरीफ लेकर गए। देखा कोई नहीं रुका अली के अलावा, तो पिछलों की खबर करूं क्या लगे। लेकिन जज्बा इश्क रसूल का इतना था कि जब जंग खत्म हो गई जंग, तो आप सबसे पहले वापस तशरीफ लाए। तवज्जो है या नहीं। शियों ने नहीं कहा जी, आपके जाकिर कहते हैं सहाबा किराम ने रसूल का जनाजा नहीं पढ़ा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। मुझे अल्लाह की वहदानियत, मोहम्मद की रिसालत, अली की विलायत, बतूल की तहारत, हसन की सखावत और इमामत, हुसैन की शहादत, ज़ैनुल अबा की इबादत, मोहम्मद बाकर की रियाजत, जाफर सादिक के सिद्क, मूसा काज़िम के किज़्मुल गैज़, अली रज़ा की सखावत, जब्बाद और तकी की सखावत और नकी की इज्जत और अजमत, अस्करी की हैबत और बारहवें की खैबत की कसम, रसूल का जनाजा सहाबियों ने नहीं छोड़ा था, मुनाफिकों ने छोड़ा। जिसका ईमान होगा मेरे साथ बोलेंगे, जिसका ईमान साथ रह दे बेशक जो बैठा रहे। आपको किसने कहा? सब हैदरी रसूल अल्लाह का जनाजा कोशिश करी, नहीं मिलती। वो वारसे पैगंबर हो इस्लाम के कैसे, शलवार भी अब तक जिन्हें पूरी नहीं मिलती। सामईन गिरामी कादर, मैं बड़े अदब और एहतराम से मिल्लत मुस्लिमा को अपना अकीदा बताना चाहता हूं। कभी शिया किसी ने कहा कि हम सहाबा को नहीं मानते? अपना अकीदा तो बाबा जी हमें बताना चाहिए। गैर क्यों बताएगा कि हम किसे मानते हैं किसे नहीं मानते? तवज्जो है या नहीं? नबी जी ये गैर का हक नहीं, वो हमारा अकीदा बताए, अपना अकीदा मैं बताऊंगा। बाबा जी अपना अकीदा हमें बताना चाहिए कि हम किसे मानते हैं किसे नहीं मानते। जी सहाबा किराम को नहीं मानते, अल्लाह की लानत हो उस बेगैरत पर जो सहाबा को बुरा कहता हो, करोड़ लानत हो उस बेगैरत पर जो बुरे को सहाबी कहता हो। जिसे बात समझ आई है वो मेरे साथ बोलेगा। कई बंदे सोचते रह गए भाई सहाबी बुरा नहीं हो सकता, तो बुरा सहाबी कैसे हो सकता है? अब हमें नहीं पता किसने रसूल का जनाजा पढ़ा था, खुद पता करो जी। रसूल का जनाजा तो होता ही नहीं, फिर भी बात खत्म नहीं हुई। कफन तो होता है रसूल का।
मट्टी तो डाली के नहीं डाली, काबर भी खुदी के नहीं खुदी। यहाँ इलाके का छोटा सा चौधरी मर जाए, बार बार बड़े बड़े मोअज़्ज़ज़ बंदे बार बार कहते इधर मैनू फड़ा कड़कई जी, और रिश्तेदारों को दिखा दिखा के बंदे मट्टी डालते हैं ऊंचा ऊंचा पहाड़ के। इन्ना लिल्लाह व इन्ना। हमारे इलाके में रिवाज है, इधर भी होगा मुझे पता नहीं है। अफसोस करने के लिए बंदे ज्यादा हो ना जी, तो बार बार वारिस को बंदे आवाज देके कहते हैं फलां साहब अल्लाह का हुक्म जी, भाई पता चले भी मैं आया। तवज्जो है या नहीं? आप जो बंदे चौपों में शादी मिसाल देता हूँ, 20 अप्रैल 1991 को मेरे वाले साहब का इंतकाल हुआ था, बड़ा काफी अरसा गुजर गया, मैं 9वीं क्लास में पढ़ता था। इस मिंबर की इज्जत की कसम, जो बंदे आए थे आज तक याद हैं, जो नहीं आए थे वो अब भी याद हैं। बात हालांकि बड़ी पुरानी हो गई। जो बंदे आए थे जनाजा पढ़ने के लिए अच्छी तरह से याद है, चेहरा भी नाम भी। जो नहीं आए थे वो ज्यादा याद हैं। जी हम पंजाब के लोग हैं ना, आपकी सकाफत दूसरी है ना, मेरी तहजीब दूसरी है। हम सारों की सकाफत एक है। फिर उसका नतीजा पता है किबला क्या है? जिन बंदों ने जनाजा पढ़ा था, मैं फिर रहा हूं इस्लामाबाद, फोन आया वो मर गया, मैं ओहो गड्डी मोड़ो जी, जनाजा पढ़ना है, क्योंकि उसने मेरे बाप का जनाजा पढ़ा था। इमाम हुसैन बादशाह तुम्हारी जवानी सलामत रखे। गाजी अब्बास की कसम जबान नहीं बोलती, माँ की तहारत बोलती है, अकीदा बोलता है, हिमायत अहले बैत में अकीदे वाली जबान बोलती है। और बतूल की चादर की कसम, जिसने मेरे बाप का जनाजा नहीं पढ़ा था, मैं घर मुल्तान फारग बैठा रहूं, गली से जनाजा गुजरता जाए, ना मैं कल गया था ना आइंदा कभी जाऊंगा, क्योंकि मेरे बाप का नहीं पढ़ा था तो मैं बेगैरत तो नहीं कि उसका जनाजा पढ़ूं। जिसने मोहम्मद का जनाजा पढ़ा था, मोहम्मद के वारिस अली को मदाइन क्यों न जाना पड़ा, उसने सलमान का जनाजा जाके पढ़ा। जिन्होंने नहीं पढ़ा था लाश कुत्ते घसीट दे रहे अली जनाजे में। सलामत आले मोहम्मद तुम्हें सलामत रखे। जनाब सैयद कौनैन आबाद शाद रहे। हैदरी तारीख छुपाई नहीं जा सकती। लोग यहूदियों के कब्रिस्तान में दफन करते रहे, अली नहीं आए। एक बंदा मुझे कह लगा इतने बुरे होते रसूल के साथ क्यों दफन होते? मैंने कहा वोट किसे देते हो? उन्हें कहा जी पीपल पार्टी में। मैं कहा ज़ियाउल हक बुरा होता तो फैसल मस्जिद में दफन होता। उन्हें कहा जी हुकूमत जो ना दी सी। मैं कहा इत्थे ही हुकूमत वाला चक्कर है। मैं गया जी उर्दन, वहां एक नबी की खबर है, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम। बड़ा दिल किया जी जाके जियारत करे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम दा वालिद माजिद। बाद कमरे में दाखिल हुए, गुंबद, उसके अंदर जी कब्रें बहुत सारी। जितने हमारे साथ सुन्नी शिया सारे थे वो नबी की कब्र को बंदे चूमते रहे, दुरूद शरीफ पढ़ते रहे। फिर कुछ बंदे इधर उधर कब्रों को चूमने निकल गए, बिजड़िए जड़िए नालन। अच्छा वो मुजावर सोटी चाल है जी, वो हल्का हल्का सबको मार के गए बिटा बिटा बिटा। उन्हें कहा यही वहाबी है। मैंने कहा वहाबी होते तो नबी की कब्र क्यों चूमने देते? इनसे पूछना चाहिए बेचक्कर की तो विचली गाल लेते दसो साल। उन्हें कहा पाकिस्तानी तो इंडिया वाले बेवकूफ हैं, जब भी इनमें से कोई आता है वो सारी कब्रों को चूम जाता है। साढ़े तो पूछो। मैंने कहा ये कौन है? उन्हें कहा ये यूसुफ के भाई हैं। मेरे दोस्तों अब तो झूठ एक मिनट भी नहीं चल सकता। इंटरनेट हर दूसरे घर में मौजूद है, सर्च करो तो फौरन निकल आएगा। दरमियान में याकूब नबी, इधर उधर 307 के मुजरिम।